Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon. I would like to welcome all of you, all the scholars, all the aspiring researchers who have joined us, who are in plan to join. सबके लिए I would just say a very warm welcome सबके लिए. So today we are basically celebrating International Women's Day, which is supposed to be held it on March 8th. But आप सबके presence के साथ we are celebrating it today. So this session is all about we are going to celebrate and recognize all the achievements, the journey of women's in research and any I would say domain जहाँ पर उन्होंने contribute करा है अपनी achievement से अपने effort से. So we'll be celebrating, we'll be recognizing, we'll be honoring all the efforts of the women around us. And we have scholars with us as well जो इस journey में हमारे साथ हैं. By their kind words they'll be inspiring us too. So this session is all going to be about the same, but I mean to start with, I'll just थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको brief दूंगी like what exactly this day is about, why we are celebrating. So the campaign theme what we are following this year, so बहुत छोटा सा brief I'll be sharing with all of you just to start with. So we basically celebrate this day as International Women's Day on March 8th. So this year जो International Women's Day का main campaign theme है, it is give to gain. So whatever I mean we are giving to the society by women, वो definitely reciprocate होके हमारे पास जरूर आएगा in future by their research, by their contribution, by their education. Anyway, say whatever we are investing will come back to us. So the main theme of this International Women's Day 2026 जो हम follow कर रहे हैं is give to gain. But alongside United Nations जो है is following the theme rights, justice and action. So as the name says, rights, justice and action, it is for all the women around, all the girls around, which I mean both of the themes, the main campaign theme and the United Nation theme, ये बहुत अपने आप को complement करती हैं. बड़ा ग्लोबल पावरफुल मैसेज कन्वे करती हैं, राइट, एक्शन, जस्टिस. And whatever we are giving to the society by maybe educating our women today will come back to us in any of the form. So these are the two main themes what are being followed for 2026 for this year. So again थोड़ा सा और बहुत बेसिक सा एक मैं आपको और डिटेल शेयर करूंगी that prior to 1975 lot of injustice in terms of payrolls, in terms of the work, in terms of gender inequality were happening to the females. So from 1975 a day has been selected which is March 8th, and all the women around they are being celebrated, they are being recognized, they are being honored for the contribution, for the efforts they are being doing to the society. So since 1975 ऐसा नहीं है कि हम पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस थे उसको याद करते थे, बट फ्रॉम द फ्यूचर लाइक सिंस 1975 जो भी एक हम ऑनर दे सकते हैं टू द women around, we are doing that and we are celebrating that day. So उसी के साथ I will be taking this session forward. हमारे साथ बहुत सारे scholars हैं, they'll be adding their achievement story with us, they'll be sharing their journey with us, how that journey reformed us, उन्होंने कैसे I mean they planned, they decided to be a part of this research journey, and कैसे I mean उन्होंने अपने past experience से कुछ achieve करा, which of course can be I would say eye opening incident or maybe an inspiring journey हम सबके लिए भी. तो slowly and steadily we'll be taking all of you, चाहे आप 2 to 5 minutes ही contribute कर पाए जरूर करिए. एंड इन केस मैंने मिस आउट करा है किसी के साथ ओपन इंटरेक्शन का पूछने के लिए, तो एवरीबडी इज वेलकम्ड इस सेशन के लिए. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप किसी भी वे से 2 4 5 मिनट अपने अगर ऐड करके एक वैल्यू ऐड हमारे लिए भी, आप ऑफ कोर्स ये सबके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक इंस्पिरेशन स्टोरी रहेगी जो आप कर सकते हैं तो जरूर करिए. यू नेवर नो आपके कुछ वर्ड से किसी की जर्नी में कितना इम्पैक्ट आ जाए. So considering that, let's start with Pratibha ma'am. She has just joined the PhD journey with us. So ma'am, I'll be heading the mic to you, and आप definitely add करिए अपनी story भी, and कुछ अगर हम उससे सीख पाए जरूर हम सीखेंगे. गुड मॉर्निंग मैम, एंड बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने ये सेशन की स्टार्ट मेरे से किया.
और इतने सारे हमारे स्टूडेंट हैं एंड डेवलपमेंट रिसर्चर हैं, तो उनके सामने में मैं अपनी बात को कह पाऊंगी और शायद कुछ एक अच्छा मैसेज आएगा जिससे कि हम मतलब अवेयर भी कर सकते हैं कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं मैम। डेफिनेटली मैम। ये इसको ना एक सेकेंड मैम प्लीज म्यूट करना, इसको म्यूट एक सेकेंड मैम, सॉरी, इसको म्यूट कर या वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर। हाँ जी मैम, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस थोड़ी इट्स सी ओके साउंड मैम। में जी। मैम मेरा नाम प्रतिभा पांडे है एंड मैं LSTU से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं PhD करने जा रही हूँ। और ये मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मैम कि जहाँ मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को तलाशा, बहुत विजिट भी किया काफ़ी जगह पे, मैं यूपी में भी गई, इवन मैंने राजस्थान भी किया विजिट। बट जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे विजिट किया तो मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि जहाँ पे मेरा जो ड्रीम है, जो मैं ढूंढना चाहती हूँ, या जो जिस लेवल से मैं अपनी PhD को स्टार्ट करना चाहती हूँ, अपने सोशल वर्क को करते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, तो वो ये मेरे लिए राइट प्लेस है। तो यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और आगे में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं MSW मतलब किया हुआ है इग्नू से। और सोशल वर्क तो मैं बहुत टाइम से, पहले से, इवन बिगनिंग से, जैसे जब मेरी नानी जी थे और नानी से मैंने सीखा है। और उसको प्रोफेशनली NSS जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां पे जा करके मैंने जो अपने देश से जुड़ाव, अपने पड़ोसियों से जुड़ाव, अपने वातावरण से जुड़ाव के लिए मैं 100% में NSS को अपना पूरा श्रेय देना चाहूंगी। जहां से कि मैंने ये सोचा कि हमारे परिवार से, हमारे जब हम बाहर निकलते हैं तो जिस माहौल में मैम हम रहते हैं उस माहौल को अच्छा बनाना भी हमारा कर्तव्य होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई रैपर खा लिया, अगर हमने कहीं भी फेंक दिया, तो ये ब्लेम गेम तो मैम चलता ही रहता है कि गंदा है शहर, गंदा है शहर, लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया। क्या हमने उस रैपर को डस्टबिन में डाला? नहीं डाला। तो इस तरीके से मैम जर्नी स्टार्ट हुई। और महिलाओं के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ मैम कि जो जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, यहाँ हमें अपनी पोजीशन बनाने के लिए आई थिंक लड़ना पड़ता है हमें। तो चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के, इवन स्वास्थ्य के लिए भी हो, क्योंकि हम लोग दिन भर काम करते हैं और उतना ध्यान नहीं दे पाते मैम जितना कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एक औरत होती है मैम, वो घर की रीढ़ की हड्डी है, तो वो पूरे हमारे समाज के लिए भी है, क्योंकि वो जननी है और उसका बहुत बड़ा योगदान मैम हमारे समाज में होता है। तो इसके लिए मैंने अपनी एजुकेशन लिया। एजुकेशन लेने के बाद में मैं अगर पर्सनली कहूँ तो एक छोटा सा सेटअप डाला हुआ है, जॉय विद सोशल वर्क करके। मैंने 25-26 लेडीज का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के जरिए मैम हम 32 हॉस्पिटल के आगे लंगर सेवा चलाते हैं। और चूंकि मेरा साइकोलॉजी विषय है तो इससे मतलब मुझे स्पेशली जो है काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करना है, रिसर्च करना है कि हम लोग किस तरीके से साइकोलॉजी के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से जो एंजाइटी, डिप्रेशन या बर्नआउट की स्थिति समाज में है आज के डेट में, कि हर एक व्यक्ति बर्नआउट की स्टेज पे महसूस कर रहा है। और ये स्थिति में डे आगे चल के और भी ज्यादा स्थिति शायद बढ़ने वाली है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हम आसपास अपने माहौल में देखते हैं। तो उसके लिए मैम एक काउंसलिंग सेवा की शुरुआत हुई है, जिसमें कि हमारी रोमी मैम है और नीना जी हैं, हमारे सर हैं। तो ये हम लोग 4-5 लोग मिलके, और भी हमारे कुछ लोगों को मैंने जोड़ा है, जिससे कि ये काउंसलिंग का मैम काम शुरू हो रहा है। और साथ में एज वेल एज जैसे मैम सोशल वर्क के लिए क्या होता है कि कई बारी मैं तो कहती हूँ कि एक मेरा सुझाव है सभी के लिए कि जैसे हमारे घर में, हमारे हाउस होल्ड के लिए हेल्पर्स आते हैं, जैसे गाड़ी धोने वाला आता है मैम, सफाई करने वाला आता है, तो इन लोगों के पास मैम ना तो टाइम है और ना ही मैम पैसा है और ना ही मैम स्किल है कि अपनी बच्चियों को कैसे ये लोग मेन स्ट्रीम में लेकर के आए।
वो नहीं समझ पाते हैं कि इनको अपनी बच्चियों को कैसा माहौल देना है, क्योंकि मैं बहुत स्लम में विजिट करती हूँ, तो वहाँ मैं देखती हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आंकड़े चाहे जो मर्जी हो, बट आज भी रूट लेवल पे मैम दिक्कत है। तो हम उनको अवेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल मुझे सुनने के लिए, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मैम ने हम सबको दिया है कि इट स्टार्ट्स विद अस, कि कोई भी एफर्ट, कोई भी अगर हम चेंज चाहते हैं, इट स्टार्ट्स विद अस। सो आई होप इट एड्स अ वैल्यू, और मे बी हम कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूट करके मैम ने जो हम सबको बताया है वो स्टार्ट कर पाए, और वैसे ही हम भी उस पे इम्प्लीमेंट कर पाए। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। रविंदर मैम, आई होप आप भी कुछ हमारे को थोड़ा सा इस जर्नी में गाइड करेंगे अपने काइंड वर्ड्स के साथ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, मैं रविंदर कौर गिल मैम, मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने पहले योगा प्लेयर थी स्टेट लेवल पर मैडम, फिर मैंने नेशनल किया, फिर मैं अब इंटरनेशनल की तैयारी कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं एक्यूप्रेशर का भी कर रही हूँ और नेचुरोपैथी का डिप्लोमा भी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सोचा, उसके बाद सोचा मैंने एमए कंप्लीट करने के बाद सोचा पीएचडी करने का, और आपकी यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी स्टार्ट करनी है। तो वुमेन डेज पे मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ है कि आपने मेरे को बुलाया 2 वर्ड्स बोलने के लिए। मैडम मेरी जर्निंग थी कि मेरी शादी को 25 ईयर्स हो गए हैं। मैंने 18 साल के बाद मैडम पढ़ाई स्टार्ट की अगेन, फर्स्ट डू डिप्लोमा इन योगा, देन PGCY, देन मास्टर्स इन योगा, देन जस्ट प्लेइंग योगा कॉम्पिटिशन, देन मेक जज योगा नाउ। तो मैं क्या, चलो पीएचडी कर लेते हैं मैडम। पढ़ना तो मैडम मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि अब इतनी टाइम हो गया है, थोड़ा सा लर्निंग पावर और मेमोरी का फर्क पड़ जाता है, पर आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन योगा। और मैं अमन पिताजी के मेंबर भी हूँ। हम पार्कों में योगा कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों को, गरीब बच्चों को कराते हैं। और मैडम मैं गाँव से, मैं पंजाब से रिलेटेड हूँ। ऐसे एक्चुअली मैं पंजाब की हूँ, रहती चंडीगढ़ में। और हमारे जैसे गरीब लगे होते हैं मैडम, काम वाले हमारे लगे होते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। जैसे उनकी शादी करनी है लड़कियों की, तो उनकी शादी के लिए मतलब हम सपोर्ट करते हैं उनके साथ। और पीजीआई मैडम, हमारे पास पीजीआई पड़ता है जब मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में, हमारे पास पीजीआई है। तो वहाँ पीजीआई में हम लंगर लगाते हैं मैडम, एवरी मंथ में एक बार लंगर लगता है हमारे यहाँ पे। पर जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है मैडम, उनके लिए फिर हम उनकी सेवा करते हैं। उनके मतलब एक दो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ पे, फिर उनकी सारी मेडिसिन का खर्चा हम उठाते हैं। हम 100-150 मेंबर है मैडम उसमें हैं सारे, फिर उसकी उनकी सेवा करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैडम। बस गरीबों की सेवा करना मैडम, ये हमारा धर्म है। सेवा करो और मेवा पाओ, बस मैडम यही होता है। और अच्छा, बस अच्छा इंसान बनो मैडम, बस दुनिया में ये संदेश है मैडम बस। नहीं ओके मैम, मैम, थैंक यू बहुत सो मच। बहुत अच्छा मैसेज है। आपने बहुत अच्छी अपनी जर्नी बताई है कि कैसे आप औरों की हेल्प कर रहे हो, नीडीज की हेल्प कर रहे हो, आप जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप कर रहे हो। आई थिंक आपसे हमें ये भी सीखने को मिल रहा है कि देयर इज नो स्टॉप। आप कभी भी अपना जर्नी रीस्टार्ट कर सकते हो, देयर इज नो स्टॉप। वो एक जज्बा होना चाहिए, एक मन में वो जोश होना चाहिए कि देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो एंड टू एनीथिंग। आप कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो। बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है। आई होप एनीबडी जो इस प्लान में है ज्वाइन करने के, या जो इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, ये उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि वो अगर इस बात से घबरा रहे हैं कि हम कैसे करेंगे मैनेज या कैसे होगा, तो आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आप साइमल्टेनियसली कितनी सारी चीजें साथ में कवर कर रहे हैं, बट आपने भी ये जर्नी स्टार्ट करी है। तो नहीं मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा हमें एक आई वुड से इनलाइटन पाथ दिया है, जैसे कि प्रतिभा मैम ने भी हमें शेयर करा है। तो इट इज वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी हमारे साथ इस सेशन का पार्ट हैं, प्लीज आप अगर 2 मिनट 4 मिनट कैसे भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट करी है, मे बी दैट इवन कैन हेल्प अ लॉट ऑफ अस, उसको ही आप शेयर करके आप हमें शेयर कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी मोटिवेशनल जर्नी, मोटिवेशनल वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस। हेलो मैम। हेलो, आप ऑडिबल हो मैम? ओके मैम। मेरा नाम महेश्वरी शुक्ला है
और मैं भी लैम्पटिंग टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से जो है अपनी पीएचडी कर रही हूँ। तो मैम मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे प्रतिभा मैम और दूसरे मैम ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, बेसिकली इन लोगों ने बहुत अचीव किया है अपनी लाइफ में कि अपनी स्टडी है जो दोबारा से शुरू करनी। अभी हमने तो चलो रेगुलर स्टडी करते करते ही स्टडी कर ली, बट एज सच मैं कहना चाहूँगी टू बीइंग अ फीमेल कि हमने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अभी अचीव नहीं किया, क्योंकि अभी हमारी वो सीखने की उम्र है। बट मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं LTSU में एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी जॉब कर रही हूँ। तो आजकल के समय में क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे, बेसिकली लड़कियां, सोशल मीडिया का जमाना है, हम सभी को ही पता है, तो ना वो गलत रास्तों की तरफ जा रही है लड़कियां। तो मतलब मैंने ये चीज, मैं अपने बड़े टीचर से सबसे हमेशा पूछती रहती हूँ कि हाँ जी इन बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो उनको हैंडल करने के लिए मैंने सिर्फ यही एक तकनीक अपनाई है कि बेसिकली जो गर्ल्स हैं हमेशा जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जाएं, क्योंकि हर एक चीज में नेगेटिविटी भी होती है एंड पॉजिटिविटी भी होती है। तो मैं हमेशा उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव चीजों को चूज करोगे, आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे और आप हमेशा आगे की ओर बढ़ोगे। वैसे तो मुझे कविताओं का शौक है, क्या मैं एक छोटी सी कविता आप सबको सुना सकती हूँ? श्योर मैम, श्योर, बहुत हमें अच्छा लगेगा सुन के। वैसे तो आप सबने सुनी होगी, बट मुझे शौक है बोलने का, तो आई विल। प्लीज डेफिनेटली शेयर कीजिए। मैं राम बनूंगी, मेरी सीता बनोगे क्या? मैं राम बनूंगी, मेरी सीता बनोगे क्या? अगली बार मैं चुनूंगी मर्यादा, तुम अग्नि परीक्षा दोगे क्या? मैं कृष्ण बनूंगी, मैं कृष्ण बनूंगी, मेरी राधा बनोगे क्या? अगली बार मैं चुनूंगी कर्तव्य, तुम वियोग की पीड़ा सहोगे क्या? मैं शिव बनूंगी, मैं शिव बनूंगी, मेरी शक्ति बनोगे क्या? अगली बार मैं चुनूंगी योग, तुम मेरे लिए अग्नि में तपोगे क्या? मैं पुरुष बनूंगी, मैं पुरुष बनूंगी, मेरी स्त्री बनोगे क्या? मैं चुनना चाहती हूँ खुद को, मेरे लिए उन लोगों से लड़ोगे क्या? मेरे लिए उन लोगों से लड़ोगे क्या? सो मैं बेसिकली ये एक भाव है, एक लेडी का भाव है कि वो सोसाइटी में कैसे मतलब कि खुद को प्रेजेंट करती है। और ये भी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स ओके, बट नर और नारी एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम उनके बिना कुछ नहीं है और वो हमारे बिना कुछ नहीं है। तो अभी जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो होप कि सबकी जो हम स्पीचेस सुनते हैं या फिर जो हम लाइफ में देखते हैं उसके लिए हम आगे अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच कि आपने ये जो सेशन ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इंस्पायरिंग आपने जो अपनी आपने पोएम शेयर करी है, बहुत इंस्पायरिंग थी। प्लस आपके वर्ड्स भी जो यूथ से रिलेटेड थे बहुत बहुत अच्छे थे। बहुत डायरेक्शनल मैसेज आपने दिया है कि आप एक सिक्के के हमेशा दो पहलू रहते हैं। अगेन सोशल मीडिया जो है आपके लिए जैसे कि अगर बूम भी है और बून भी है, वो हमने चूज करना है कि वो हमने उसको किस तरीके से यूज करना है और यूटिलाइज करना है। तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया टू द यंग जनरेशन, to the people who are inspiring to be a part of this journey, plus all of us, कि वो हमने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे इस जर्नी में हमने उसको आई वुड से इम्पैक्ट लाने के लिए यूज करना है और इम्प्लीमेंट करना है, वो हमने चूज करना है। तो आपने बहुत अच्छे से ये मैसेज जो है दिया है। आई थिंक इट डजंट मैटर कि आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है या फिर हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इट इज कि आपने वो एफर्ट लिया, वो आपने टाइम निकाला टू एड योर वर्ड्स, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए किसी पॉइंट पे डेफिनेटली एक चेंज ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड आई वुड से कि इट इज नॉट वेरी रिस्पेक्टिव या बहुत लिमिटेड नहीं है कि मैं सिर्फ विमेन्स को ही इनवाइट कर रही हूँ टू एड देयर वर्ड्स। एनी मेल अराउंड आप भी, बिकॉज दिस इज अ वेरी विमेन ओरिएंटेड एंड विमेन जनरेटेड जो हमारी सोसाइटी है। सो आपके अराउंड विमेन रहती हैं, जो आपके घर से ही स्टार्ट होता है प्रोफेशनली पर्सनली। तो आपने अगर ये आई मीन यू हैव फेल्ट और आपने देखा है कि किसी विमेन की वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है, इट कुड बी योर कलीग, इट कुड बी योर फैमिली मेंबर, तो आप वो भी आई मीन 2 मिनट का आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं वो एक्सपीरियंस। क्या पता वो हमारे लिए एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाए, एक इम्पैक्टफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो इट इज नॉट वेरी लिमिटेड टू विमेन ओनली, पीपल आई मीन जो और जितना ऑडियंस है हमारे इस सेशन का, वो सब भी कुछ ना कुछ अपनी वॉइस ऐड कर सकते हैं इस सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून मैम।
Good afternoon, ma'am. Ma'am, my name is Puneet Kaur. Hi, ma'am. तो मैं रिसेंटली लैम्ब्रेन टेक में मैंने एडमिशन लिया पीएचडी के लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। Okay, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोलना चाहती हूँ। Thank you so तो much. जैसे सबके behalf पे जैसे अभी महेश्वरी मैम ने बोला, मैं इनकी वर्ड से बहुत मुझे टच हुई कि नर और नारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज की जनरेशन में जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि हम लोगों ने मैं मतलब कि सिंपल मतलब जो मैं फील कर रही हूँ, हम लोगों ने इतना बोल दिया है कि वुमेन को इक्वालिटी दो, इतना मतलब इतना हर चीज से हो रहा है कि अब आजकल की जनरेशन को अपनी लिमिट ही भूल चुकी है। जैसे कि आप सबने देखा होगा न्यू ईयर में कितनी वीडियोस वायरल हुई, कितना कुछ हुआ। मोस्टली मैं देख रही हूँ कि लड़के संभाल रहे हैं लड़कियों को, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं पार्टी कर करके। तो हमें वैसे नहीं करना है, वुमेन को इक्वलिटी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो मैन भी उतना ही जरूरी है एक लड़की की जिंदगी में जितनी लड़की जरूरी है एक घर के लिए। तो हमें एजुकेशन वैसे प्रोवाइड करनी है, वुमेन को ऐसे सपोर्ट करना है कि आजकल की जनरेशन को ये भी समझ में आए कि हाँ, लड़का भी उतना ही ज़रूरी है जितनी एक लड़की ज़रूरी है। मैम मैंने अपनी एजुकेशन की जर्नी मतलब कि आज भी मैं कभी उस चीज़ पे बात नहीं कर सकती हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट वे में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हम अपने घर पे नहीं रह सकते थे क्योंकि मैं विलेज में रहती थी, हमें वहां से मार्केट आना पड़ता था, मतलब शहर में आना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो हमें तब एक बस हुआ करती थी, तो बस में सीट्स अवेलेबल नहीं होती थी, भीड़ होती थी, तो मेरे घर वालों ने बोला कि तुम्हें हम बुआ के पास छोड़ देंगे। तो 4 साल अप टू 12th में अपने घर से दूर रही, अपनी बुआ के घर पढ़ी। उसके बाद आई तो मुझे हाई सेकेंडरी में डाल दिया गया। मतलब कि मेरे क्या एम्बिशंस थे वो किसी ने नहीं पूछा। बस मेरे पेरेंट्स का था कि हाँ, हमें अपनी बेटी को एजुकेट करना है। देन मैंने ग्रेजुएशन की, बीएड किया, पीजी किया और बस एनफ। तो मैंने देखा कि बस हो गया जी, इसकी पढ़ाई हो गई, अब कोई जॉब है, शादी है तो कर देंगे। तो मैंने सोचा नहीं, यहाँ तक मैं नहीं रुक सकती हूँ। उसके बाद मैंने 3 साल अपनी स्टडी को दिए और इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा। मुझे मेरी मदर बीमार हो गई, मुझे अपना पूरा घर सँभालना पड़ता था। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, पूरी जॉइंट फैमिली सँभालनी पड़ती थी और रात को मैं 2-2 3-3 बजे तक बैठ के यूजीसी नेट की तैयारी करती थी। एट लास्ट में 1 पॉइंट से रह गई और पीएचडी के लिए मैंने एंट्रेंस क्वालीफाई किया। फिर मैंने सेट का एग्ज़ाम दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सेट भी क्लियर हो गया रिसेंटली। लेकिन वो जो गोल है मेरा कि हाँ, मुझे वहाँ पहुँचना था, मैंने उसको नहीं छोड़ा। शादी भी हो गई लेकिन मेरा अंदर से था कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे पीएचडी करनी है। एंड थैंक यू, मैं लैम्ब्रेन टेक को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं कैसे सब कुछ सँभालते हुए अपने गोल को अचीव कर सकूँ। आज मैं इग्नू में पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, उनके रिसर्च वर्क के लिए उनको सपोर्ट करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ। मैं एक काउंसलर हूँ इग्नू में। सब कुछ मिल जाता है लेकिन अंदर से चाह होनी चाहिए और चाह पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे उससे आगे निकलना है। ये देखो कि मुझे अपने में अपने लिए बेस्ट करना है। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि गर्ल्स को आगे बढ़ना है, वुमेन्स को आगे बढ़ना है, इक्वली बढ़ना है, लेकिन ये नहीं सोच के कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ तो मुझे एक मैन की जरूरत नहीं है, मुझे एक मेल की जरूरत नहीं है। पनवित दरवाजा और दादी को बोल के आ जा कि मैम आपके बहुत काइंड वर्ड्स थे, बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स थे आपके। आपने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं, प्लस आपने एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे करा है विच इज कि इर्रेस्पेक्टिव लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए,
अगर आपका एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है ना कि आपने करना है, तो यू फाइट बैक फॉर ऑल द चैलेंजेस यू कम अक्रॉस। सो बड़ा यस मैम। ब्यूटीफुली मैसेज आपने मुझे दिया है ये, एंड आई थिंक ये सबके लिए इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही इम्पैक्टफुल रहेगा जितना कि ये मेरे लिए रहा। बड़ा ब्यूटीफुली आपने बताया कि कैसे आपकी जर्नी कितनी डिफिकल्ट रही है, कैसे आपने मैनेज किया हाउस होल्ड एक्टिविटीज प्लस आपका जो प्रोफेशनल करियर था, कैसे कितना ब्यूटीफुली आपने उसको मैनेज करके अभी रिसेंटली अपना एग्जाम क्वालिफाई करा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब, मतलब बहुत आप सबकी जर्नी सुनना, आप सबकी जर्नीज में से इतना जो आपने स्ट्रगल किया मैम कहीं ना कहीं। बहुत बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। हार्ड वर्क करना, फेलियर फेस करना और उसके बाद फिर खड़े होना और फिर बोलना नहीं मैं फिर से एग्जाम दूंगी। आई थिंक मुझे लगता है मैंने 4 to 5 टाइम्स यूजीसी नेट में मैं फेल हो चुकी हूँ, कभी 1 पॉइंट से, कभी 10 पॉइंट से, कभी 5 पॉइंट से। लेकिन अभी भी मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं फिर से दूंगी, मैं मैम पीएचडी बहुत बहुत करूंगी, मैं पॉजिटिव नेट थॉट है क्वालिफाई ये। करूंगी। यस राइट, मैम। बहुत पॉजिटिव आपसे थॉट मिलता है। मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए इक्वली उतना ही पॉजिटिव है, जैसे आपने जितना एक पॉजिटिविटी से बताया कि इररिस्पेक्टिव 2-3 बार अगर नहीं हुआ, हाउ डज इट मैटर, इट्स ऑल अबाउट आप हार नहीं मान रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो। एंड मैं बिलीव करती हूँ कि अगर इंसान कोशिश करता है हार्ड वर्क की, उसे फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बट आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाता। सो मैम बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज आपने हम सबके लिए दिया है, बड़ा मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग एक थॉट आपने शेयर करा है। आई होप एंड आई थिंक ये सबके लिए इक्वली वैल्यूएबल है और कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करेगा। आई मैं मतलब बिकॉज इट्स अ वेरी ओपन डिस्कशन, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मुझे एक यस अगर आए तो हम सबके लिए बड़ी मोटिवेशन होगी कि यस मैम ने बड़ी अच्छी हमें बात शेयर करी है। मैं देख सकती हूँ थम्स अप आ रहे हैं मेरे पास, बट आप इसे अनम्यूट करके भी कह सकते हैं अगर कहना चाहें। इट इज अ वेरी ओपन, मतलब बहुत इसे कैजुअल एक डिस्कशन हम रख सकते हैं, तो इट्स नो। जी जी मैम, मैंने मैम की एक एक नमस्कार मैम, से पहले तो आपको एंड नमस्कार मैम। मैंने जी जी मैंने एक एक बात मैम की बड़ी गौर से सुनी, और जो मैम बातें कह रहे थे मुझे लग रहा था ये मेरे बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक रूरल एरिया से हूँ मैम। तो वहाँ भी ऐसे ही बसों की जो प्रॉब्लम मैम ने बताया, तो लगभग लगभग वैसी ही चीज़ें होती रही हैं। और जो दूसरी टॉपिक था कि मैम ने जैसे बोला कि लड़कों के लिए, मेरा बेटा खुद, मेरे पास 2 बेटे हैं मैम, जो खास करके माहौल क्रिएट हो रहा है विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, तो जो मैम ने ये बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है कि और लड़की को ये नहीं समझना है कि अगर मेरे पास मनी है और मेरे पास पावर है तो मुझे मेल की जरूरत नहीं है। हम दोनों ही एग्जैक्टली। एक ही सिक्के के पहलू हैं। और इस थॉट को मैम भरता जा रहा है हमारे समाज में कि इवन पेरेंट्स भी कि पहले पैसे कमाओ बाद में शादी, चलो वहां तक तो मैम ठीक है, लेकिन तुम पैसे कमा रही हो इसलिए तुम्हें शादी नहीं करनी है, या तुम पैसे कमा रही हो इसलिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये थॉट मैम अपने बच्चों को कन्वे करना ये गलत है मैम। गलत है। क्योंकि ऐसे माहौल में घर में बन रहे हैं, घरों में ऐसे माहौल, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरी विजिट होती रहती है मैम काफ़ी जगह पे। तो जहाँ मैं देखती हूँ कि लड़की अगर सीए हो गई तो अरे ये तो वेल फाइनेंशियली तो भाई बहुत वेल है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। या कहीं तो वर्ड्स के थ्रू ये मैसेज कन्वे होता है, कहीं पे ये एक्टिविटी के थ्रू मैसेज कन्वे होता है, बट मैम ज़्यादातर अर्बन एरियाज में इस टाइप के मैसेज कन्वे होते हैं। तो ये जो मैम का जो ये वाला टॉपिक मेरा बड़ा दिल छुआ, और बहुत अच्छा, इसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद यस ऐसा मैम, सोचने के क्योंकि लिए। क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, मतलब हम देख रहे हैं हमारे आसपास इतनी शादियां नहीं हो रही हैं जितने डाइवर्स हो रहे हैं, जितने रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब लड़की कहीं समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। मैम मैं खुद रिसेंटली मेरी मैरिज हुई है, तो मेरे इन लॉज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पीएचडी के लिए, इवन कि मेरे हस्बैंड भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मतलब कुछ लड़की के दिमाग में ऐसा हो गया कि अगर एक बार मैंने कमाना स्टार्ट कर दी तो मुझे इनको क्या करना। नहीं, बिल्कुल मैम बिल्कुल। फैमिली को लेके चलो। आपका भाई है, जी आपका बाप है, उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपका हस्बैंड है, उसने भी आपके लिए बहुत किया होगा।
जी सबको साथ लेके चलो। मैम, इसके साथ अब आप एक देखिए, ये ओपन डिस्कशन है, रिलेटेड टू सोशल है, कि आज के डेट में जो पेरेंट्स हैं, जो यंग, जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स, मेरा बेटा 26 ईयर्स का, 27 ईयर्स का है, मैंने 26 का कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अब उसकी शादी की बात सोचते हैं ना, तो एक मन में वो खुशी नहीं है कि अरे जैसे पहले के लोग कर लेते थे शादी करनी, सोचते भगवान पता नहीं कि कैसी बने, जो लड़कियों के जो माहौल बना हुआ है आज के हमारे डेट में। पहले लोग बहू लेके आते थे, अब बहुत सारी चिंताएं साथ में आ रही हैं। और मैम ये एक मैंने चीज सर्वे मैम किया एक है। चीज ऐड करना चाहूंगी। जी मैम बेसिकली ना, जैसे हम अभी देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है सोशल मीडिया और उसके ऊपर फैले हुए नेगेटिव मैसेजेस। क्योंकि जी सोसाइटी को प्रेजेंट ही ऐसे किया जा रहा है कि हाँ जी ये चीजें होती हैं, ये नेगेटिव चीजें होती हैं, और मोस्टली देखा जाए लोग नेगेटिव चीजें देखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। टू बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, अभी मेरा तो ये एक मोटिव बन गया, होप कि आप सब भी इसमें साथ दोगे, कि हम कोशिश करें हम जिसको भी मिलें जी कभी जी भी, मैम, बस बिल्कुल उनको हम बिल्कुल। पॉजिटिव उसमें लेके चलें। बिकॉज कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पर उनका पॉजिटिव चीज को लेके क्या सोच है, हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम नेगेटिव बंदों को सुनते ही नहीं है। पर जी हमें दोनों को सुनना है कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो हम जी उनको मैम, एक जी अच्छे राह दे सके। थैंक यू सो मच मैम। जी, थैंक यू मैम। मैं आप सबकी कॉन्वर्सेशन से ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि जैसे मैम ने बोला कि वो एवरी कॉइन हैज टू फेस। तो लेट अस टेक, आज के दिन अगर हम इस पे बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि लेट अस मेक, अगर हम 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि लेट्स कीप बोथ द जेंडर इक्वल, लेट्स नॉट disrespect each other. यस It's मैम, to एग्जैक्टली। honor and of course I would say recognize women's achievement, because past में क्या होता था, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। एंड इवन आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज हैं या बहुत सारे एरियाज हैं जहां स्टिल वुमेन को उतना रिस्पेक्ट, उतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता। बट बिकॉज सोशल मीडिया ने एक थोड़ा सा डायरेक्शन डिफरेंट कर दिया है टू आवर पर्सपेक्टिव, आई वुड लाइक टू वो हम चेंज ला सकते हैं डेफिनेटली अपने टाइम में, यस, कि एटलीस्ट हम जेंडर इक्वालिटी रखें। अगर जेंडर women इक्वालिटी। को राइट हम एक रिकग्नाइजेशन दे रहे हैं, तो हम रिमेनिंग डेज ये ना भूल जाएं कि जो अदर जेंडर हमारी सोसाइटी में है हम उसको डिसग्रेस करें बाय एनी ऑफ आवर एक्टिविटी। सो मे बी ये भी हम एक सीख आज के दिन ले सकते हैं इस सेशन से, और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद यस अस। मैम, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर लड़की इंडिपेंडेंट हो रही है, इट मीन्स कि उसके पीछे भी मेल ही रहा है, उसका फादर रहा है, उसका ब्रदर रहा है, उसने उसको वहां भेजा है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप मेल के इक्वल आके खड़े हो जाओ, तो उस जेंडर को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। जी मैम, डेफिनेटली मैम, आपके जो आपने वर्ड्स ऐड करे हैं, मुझे लगता है कि हमारे साथ इस सेशंस में काफी सारे मेल्स भी हैं। ये हम, although we are celebrating a women's day, but appreciating men on the same day is again, ये अपने आप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना विजन, अपना थॉट प्रोसेस, कि हम किसी को अनइक्वल नहीं मानते। तो मैं इसको बहुत एक ब्यूटीफुल सेशन मानती हूँ कि विमेन जिनको सेलिब्रेट करने के लिए दिन है, वो भी आज के टाइम में उन्हें अनइक्वल ना मान के उन्हें भी सेलिब्रेट कर रही हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं, चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ में, उनके कोई ना कोई रिलेशनशिप्स में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो ये ही एक, आई वुड से, डिफरेंट एक दृष्टिकोण, एक डिफरेंट विजन जो आजकल बन गया है टू द राइजिंग वुमेन। यही एक चेंज है जो हम एक अच्छी सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हैं किसी भी डोमेन में। तो आई एम वेरी मच एंजॉइंग दिस सेशन, आप सबके थॉट प्रोसेस के साथ, आप लोगों के डिफरेंट विजन्स के साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन। अभी मैं और भी हमारे साथ जो इस सेशन का पार्ट है उन्हें इन्वाइट करूंगी कि वो भी अपने कुछ वर्ड्स ऐड करें। जैसे हमारा एक इसमें एक विजन, एक चेंज हुआ है, हमने एक अच्छी चीज समझी है, तो मे बी हम और चीजों पे भी वर्क कर पाए। सो एनी ऑफ अस जो इसको और ऐड करना चाहते हैं, डेफिनेटली प्लीज कम अहेड एंड आप अपनी वॉइस 2 मिनट 4 मिनट जैसे भी आप रेज करना चाहते हैं प्लीज करिए। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। I'm Neetu Sharma, Hi, and ma'am. I'm also doing PhD in education in Labyrinth Tech Skills University. This is my first year, still coursework is going on. ओके मैम। So before I start,
Just a minute. Let me tell you something about me. I'm working as a mentor resource person at District Institute of Education and Training at Sangrur. Okay, ma'am. And I have won the Teacher Fest at State and Inspire Award too, and prepared 36 videos on NCRT and at Diksha portal. This is just the profile of my job. So presently, I am working on FLN, and that is Foundation Literacy and Numeracy. Along with that, gender sensitization and life skills of education. These are the 3 different projects that we are working upon at डाइट संगरूर. तो जैसे ये बात चल रही थी जेंडर सेंसिटाइजेशन की और लाइफ स्किल्स की, सोशल मीडिया की, बिकॉज लाइफ स्किल इज क्वाइट रिलेटेड विद द सोशल मीडिया. We keep on saying कि सोशल मीडिया की वजह से the ethics and the moral values of our kids are degrading. तो हम उसी पे ही वर्क कर रहे हैं. इनफैक्ट ये एनईपी के भी अकॉर्डिंग है. एनईपी को भी लेके चलते हैं हम अपने इंस्टीट्यूट में. तो उसी के ही अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि वाई इट इज हैपनिंग, क्यों सोशल मीडिया जो है वो हमें टैंगल कर रहा है, क्यों सोशल मीडिया जो है वो हमें इतना हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा है. मैम, एक रिस्पेक्टेड मैम कह रहे थे कि उनका बेटा 26 ईयर ओल्ड है एंड शी इज क्वाइट वरीड. यस, दिस इज देयर अमंग ऑल मॉम्स, दिस इज देयर. लेकिन ये इम्पैक्ट, प्लीज डोंट माइंड मैम, बट ये इम्पैक्ट एक सोशल मीडिया का भी है. सोशल मीडिया पे किसी चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 5 सेकंड की वीडियो देख लूं, मुझे वैसे ही वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी. दिस इज द इफेक्ट ऑफ एआई. और राजेश्वरी मैम ने बहुत अच्छा कहा कि हमें पॉजिटिव लेके चले, हम पॉजिटिव वीडियोस देखें, पॉजिटिव मैसेजेस कन्वे करें. और जेंडर सेंसिटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन बार बार मैम पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आ रहा था जब ये सब हो रहा था कि व्हाट इज द नीड ऑफ सेलिब्रेटिंग विमेंस डे, व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग. मैम बेसिकली क्या होता था, पास्ट में इक्वालिटी नहीं थी. बिफोर 1975 पास्ट में, उससे पहले विमेंस को इक्वली इन टर्म्स ऑफ, आई वुड से जेंडर, इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, इक्वल नहीं कंसिडर किया जाता था. सो इंटरनेशनली, ग्लोबली एक दिन बनाया गया जिस दिन जो भी विमेन्स अराउंड अस, उनको हम एक ऑनर दे सकें, एक रिकॉग्नाइजेशन दे सकें. वो एक छोटा सा एफर्ट, आई मीन एफर्ट ऑफ द सोसाइटी टू द पीपल हु आर वर्किंग. ये उस तरीके से एक सोच से एक दिन बनाया. बट विद टाइम, लाइक 1975 से टिल 2026 बहुत चेंजेस आ गए हैं. हाँ, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है. आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, अपनी जर्नीज शेयर कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ. और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि हम अपने जो अपोजिट जेंडर है उसको भी इक्वली ही करेक्ट मैम, करेक्ट के चल रहे हैं. लेकिन बार बार मैं तो यही कहूंगी कि एक दिन ऐसा आए कि हमें नीड ही ना पड़े ये विमेंस डे सेलिब्रेट करने की. हम इतने एम्पावर्ड हो जाए, हम इतने प्रोग्रेसिव हो जाए. और ये तभी होगा, हम सब एजुकेटर हैं, और ये तभी होगा अगर हम जिनके टच में हैं उनमें ये बिलीव लेके आए. आज भी अगर आप देखो, क्योंकि मेरा डील जो होता है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ होता है, हम लोग विजिट करते हैं, वहां देखते हैं. आज भी आप देखेंगे कि वहां पे ना रजिस्टर पे, अटेंडेंस रजिस्टर पे गर्ल्स के नेम ऊपर होते हैं, बॉयज के नेम नीचे होते हैं. ये इट हैपेंस. और ये भी होता है कि अभी वॉशरूम तो बहुत दूर की बात है कि एक कॉमन वॉशरूम आ जाए, गर्ल्स के अलग और मेल्स के अलग. और मतलब बहुत चेंज की जरूरत है और हम वर्क भी कर रहे हैं प्रोग्रेसिव होने की भी, एम्पावर्ड होने की भी. तो बेसिक से शुरू करते हैं, है ना, बच्चों से शुरू करते हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, उनको समझाते हैं कि भी व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, व्हाट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन, ताकि हमें ये विमेंस डे सेलिब्रेट करने की जरूरत ना पड़े. राइट. हम इतना एजुकेट कर दें कि हम जेंडर को, जेंडर आई मीन वी कंसिडर ह्यूमंस, अगर जेंडर स्पेसिफिक. अगर मैं मैम आपसे पूछूंगी ना कि हाउ मेनी जेंडर वी आर हैविंग, आप कहेंगे मेल, फीमेल, और मे बी हम में से कोई एक बोल देगा ट्रांसजेंडर, ये भी एक आंसर आ जाएगा. तो मुझे ना एक बच्चे ने बड़ा, जब मैं इस बार विजिट पे गई तो बच्चा मुझसे पूछता, मैडम आप हमेशा जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हो,
ये एक वर्ड था साइंस की बुक में, मैन मेड। कहते मैडम वुमेन मेड क्यों नहीं है? मैंने कहा बेटा मैन मेड और वुमेन मेड छोड़ो, ह्यूमन मेड क्यों नहीं है? ये चीजें बच्चों में डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये हमारी सोच, हमारी वोकैब्स, हमारी डीलिंग के साथ डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। करेक्ट मैम, बच्चे इंक्विजिटिव हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू नो मोर एंड मोर। सोशल मीडिया एंड राइट गाइडेंस में भी एक अच्छा हमें फ्यूचर दे। कि तो यस, आपने बहुत अच्छी एक बात कही है। करेक्ट मैम। ओके, थैंक मैं यू भी सो स्कूल मच। में जब हम, थैंक यू मैम, स्कूल में मैंने भी एक चीज बड़ी हमेशा सुनी है, इट वाज अ पार्ट ऑफ सम पोएट, आई वुड से पोएम का, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, डेफिनेटली तो मैम डेफिनेटली। आई वुड वेरी मच इम्प्लीमेंट दिस इस सेशन में भी, कि हम सब कहीं ना कहीं, हमारा एक लाइन जो है वो बड़ी कॉमन है कि हम सब चेंज चाहते हैं। Although we are celebrating this day, आपने देखा होगा, हम जर्नल भी अगर बात करें ना, अगर मैंने क्लासरूम में किसी बच्चे को भेजना हो कि चेयर्स उठा लाओ, तो मैं Correct. कहूंगी बॉयज को कहूंगी कि जाओ Correct. चेयर्स उठा लाओ। वाई? अगर लड़का 1 चेयर 2 चेयर उठा सकता है, लड़कियां 3 जाके 1 चेयर उठा सकती हैं। ये छोटे छोटे से जो पर्सपेक्टिव हैं, वो थॉट हैं, जो आइडियाज हैं, आई थिंक दैट वी हैव टू चेंज। तो डेफिनेटली आ जाएगा एक ऐसा दिन जब हम विमेंस डे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, हम रोज विमेंस डे सेलिब्रेट correct, करेंगे। correct. Okay, thank Our you so motto is to celebrate every day as a women day or a men day. But हाँ. yes, at the moment, of course, we are basically recognizing all our women's work, all the efforts this basically gender has put in and brought a change. But Yes. no hard feelings for the men, because we understand and we know कि all same time पे वो भी कुछ ना कुछ change ला रहे हैं, तभी दूसरे end से changes हम देख पा रहे हैं। वो So चेंज it's होंगे तभी आई थिंक हम सक्सेसफुल होंगे। correct, ma'am. Very well said. ओके, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your words. I hope and I am believing कि आपके words ने कुछ ना कुछ हमें जो एक हम सोचने एक direction दी है to be that way, and of course to make and bring a change accordingly. मैंने अभी देखा पूजा मैम ने बड़ा ब्यूटीफुली मैसेज किया हुआ है और हमें अप्रिशिएट किया हुआ है। मैम, आप सबको उन्होंने अप्रिशिएट किया हुआ है विद ऑल योर एफर्ट्स, विद योर काइंड वर्ड्स जो आप सब ऐड कर रहे हैं। सो आप सबको मैं तो ऑफ कोर्स अप्रिशिएट कर ही रही हूँ कि आप जो चेंजेस और जो थॉट्स अपने शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे हम में से हैं जो आपको otherwise भी thumbs up and आपको appreciate कर रहे हैं। So any more people who would like to add their thoughts and any points, opinion, कुछ भी 2 मिनट का, 1 मिनट का, कुछ वो इस PhD जर्नी में उन्हें लगता है कि वो कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। Any of you? मैम बेसिकली सबसे पहले ना नारी को एक शक्ति माना गया था। कोई भी हवन हो, कोई भी काम हो, वो एक फीमेल के बिना पूरा नहीं होता था। ये जो मैन मेड सोसाइटी है ना, जैसे मैम ने वुमेन मेड की बात की, सीरियसली सोसाइटी वुमेन मेड होनी चाहिए, क्योंकि मैन मेड सोसाइटी ने क्या किया कि उनको हमेशा पीछे धकेलते गए कि नहीं तुमने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और जैसे अगर कोई, हम देखते हैं कि राजा महाराजा जब कोई युद्ध लड़ने जाते थे तो बिना वो तिलक के नहीं जाते थे, और वो तिलक उनकी वाइफ जब कोई लेडी ही करती थी, क्योंकि उसको शक्ति माना जाता था। पर धीरे धीरे जैसे हमारे बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, श्री गुरु नानक देव जी हो गए है ना, और भी बहुत सारे साधु संत हुए हैं जिन्होंने फीमेल की कंडीशन को लेके बात की। और थैंक्स टू ऑल कि जिन्होंने फीमेल को अब मेंस के बराबर ला दिया है। अभी हम चाहते हैं कि वो सतयुग फिर से आ जाए, और वो जरूर आएगा अगर हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा हमें मैसेज दिया, ज्ञान बहुत अच्छा बताया कि विमेन ओरिएंटेड, विमेन जनरेटेड एक हमारी जो सोसाइटी, मैम इट्स मोर व्हाट आई थिंक इज कि द मोर एजुकेशन हम अपने अराउंड विमेन्स को देंगे, उतना ही हम ब्यूटिफुली जो चेंज लाना चाहते हैं वो हम देख पाएंगे। सो इस बार का थीम बड़ा अप्रोप्रिएट है, उसी को कंसिडर करते हुए आई होप एंड आई एम अज्यूमिंग कि इस सेशन ने आप सबकी ये 1 आवर ने कुछ ना कुछ माइंडसेट में, कुछ ना कुछ ओपिनियन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में चेंज लाया होगा, और डेफिनेटली एक वैल्यू ऐड करी होगी। आई विल स्टिल रिक्वेस्ट, अगर स्टिल कोई अपना कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है तो वो बहुत वार्म वेलकम है उनको।
एंड उसके बाद इफ इन केस नहीं है तो मे बी अगर किसी और स्कॉलर ने कुछ और अपना ऐड करना है वो करके वील बी रैपिंग अप द सेशन, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत वैल्यू ऐड करी सबके पॉइंट ऑफ व्यू ने. सो हेलो 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 सर. हेलो सर. नमस्ते मैम. मैम नमस्ते मेरा सर. नाम मनदीप है और मैं कंप्यूटर साइंस से पीएचडी कर रहा हूँ इस समय ना. ओके सर. तो मैम लैमरिन यूनिवर्सिटी से ही कर रहा हूँ मैं. तो मैं ना कुछ अपने व्यूज ऐड करना चाहूंगा इस पे. जी सर. मैम हमने ना अभी रिसेंटली ना एक इंटरनेशनल जर्नल है जैसे उस पे वुमेन एम्पावरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया है और हम भी इस चीज की फेवर में है कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए और टेक्निकल एडवांसमेंट और ये इन सब जो जो नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, ये जो हमारे जो फीमेल्स हैं उनको पता होनी चाहिए कि कैसे एम्पावर किया जाना है इनको. जी सर. बट हमने ना जैसे रिसर्च किया है तो एक ना बहुत बड़ा हर्डल, एक बहुत बड़ा कांस्टेंट सामने आया है हमारे सामने जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ना इस समय बहुत बड़ा हर्डल है और इस पे काम करना बहुत जरूरी है. दैट इज फेक फेमिनिज्म. अब हो क्या रहा है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि आज की डेट में जैसा सशक्तिकरण, अगर हम बात करते हैं ना नारी सशक्तिकरण की, तो लॉज वगैरह में बहुत अमेंडमेंट्स की गई हैं और हो क्या गया है कि हम देख पा रहे हैं कि कई जगह ना फीमेल्स अपने राइट्स का ना मिसयूज कर रही हैं जिसे हम फेक फेमिनिज्म बोलते हैं, जिसकी वजह से जो सपोर्ट उन्हें मेल सोसाइटी की तरफ से मिलनी चाहिए ना, जैसे मान लो सपोज कोई एक मेल है और वो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस्ड है, बट ड्यू टू सम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी और ड्यू टू सम फेक फेमिनिज्म लाइक एक्शंस, ये अपनी फेवर्स जो होती है ना इनको, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर. जी सर. तो ये जो चीजें हैं ना इस पे भी क्योंकि ना कहते हैं कि हर चीज ना एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं. जी सर. जैसे हम बोलते हैं कि पुरुष प्रधान समाज, यस. पुरुष एक फीमेल को एजुकेट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते. पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मेट्रो सिटीज के अंदर जो वल्गैरिटी है ज्यादातर कहाँ मची हुई है, किस सेक्टर पे मची हुई है. पेरेंट्स जो है वो इतना प्राउड फील नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को लेके, वो एक बार सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि वेदर क्या ये यहाँ ये जो वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, कितना किया जाना चाहिए इस चीज को. यस सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब मैंने वो न्यू ईयर की वीडियोस देखी तो मेरे बस ज़हन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उन पेरेंट्स का क्या जिन्होंने हज़ार ताने सुन के, हज़ार बातें सुन के अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट करने के लिए इतने दूर भेजा था, वो क्या सोच रहे होंगे कि शायद हमने गलती कर दी अपनी बच्चियों को इतने दूर भेज के। जी मैम. मैम मुझे ऐसा लगता है जो सर ने पॉइंट रेज करा बड़ा बहुत अच्छा, बड़ा मतलब हम अपने आसपास देख रहे हैं मैम ये इस समय open issue इस बन समय जाता हम है. देख रहे हैं कि जो लिकर कल्चर है जिसको पहले वुमन विक्टिम हुआ करती थी, आजकल सोसाइटी में वो अडॉप्ट कर रही हैं. रैंडमली क्या हो रहा है, सिचुएशन ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि इनिशिएटिव उनकी तरफ से आ रहा है इन चीजों को लेके. यस सर, एग्जैक्टली। मैंने एक वीडियो देखी, चंडीगढ़ की थी आई थिंक, एक सरदार थे उनकी, वो अपनी, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, वो अपनी बेटी को घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने फादर को जी. धकेल रही थी और वापस अंदर जाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे जाना है। तो उस बाप ने कितनी मेहनत करके अपनी उस बेटी को वहां भेजा होगा पढ़ने के लिए, कितनी आजादी, कितना फ्रीडम उसने दिया होगा उस बच्ची को वहां जाने के लिए। लेकिन एट द एंड उसने क्या सोचा होगा कि मुझे अपनी बेटी एम्पावर नहीं करनी थी, अगर ऐसा होना था मुझे नहीं करनी चाहिए। जी ये मैम. चीजें अब सामने हो रही हैं, एक नेगेटिव वे में जा रहा है सारा सिस्टम। करेक्ट. सो मैम इससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं, जो सर ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज करा है, आपने उसमें एक अपना भी विजन ऐड करा है कि जो चेंज हम चाहते हैं वो चेंज हमसे ही स्टार्ट होगा. द मोर कॉन्शियस वी बिकम टू ब्रिंग अ चेंज. यस मैम, मैं एक और पॉइंट रखना चाहूंगी।
जैसे आप भी फीमेल हो, मैं भी फीमेल हूँ, आप भी कभी आपने भी ये चीज़ फ़ील की होगी कि सारी चीज़ों को साइड रख के एक लड़की कभी भी अकेले रात को निकलने में खुद को सेफ फ़ील नहीं करती, ऐसा क्यों? अगर हमें एम्पावर भी करना है, इक्वालिटी भी लानी है, लेकिन हमें उस चीज़ पे भी देखना है कि एक लड़की अगर जैसे लड़का रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे काम से आएगा, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, लड़की को क्यों है? जी मैम, तो आई थिंक मैम के पॉइंट से हम यही कंक्लूड करते हैं, सर के पॉइंट से, मैम के पॉइंट से, कि जो भी चेंजेस हम एक विमेन के लिए चाहते हैं, लेट अस बी दैट वॉइस, लेट अस बी दैट रे, जो हम चेंजेस सब में लाना चाहते हैं, सोसाइटी में लाना चाहते हैं, लेट अस बी दैट चेंज, लेट अस पुट सम एफर्ट टू ब्रिंग दैट चेंज। सो आज के सेशन में जो हम सबने अपना एक वैल्यूएबल टाइम कंट्रीब्यूट करा है, अपने थॉट्स ऐड करे हैं, let us try to implement that in our lives, जिससे जो आज हमने आई वुड से बेसिक मुद्दे, बेसिक इश्यूज जो डिस्कस करे हैं, उन पे हम कुछ एक चेंज ला पाए। हम आई वुड से 0.1% भी चेंज ला पाए अगर एक सेशन, एक 1 आवर के सेशन के बाद, इट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग, बिकॉज चेंज लाना इज अ बिग थिंग आज के टाइम में, व्हेन इट इज सो मच सोशल मीडिया कंट्रोल्ड सोसाइटी एंड वर्ल्ड अराउंड. So I would thanks every one of you who has been a part of this session, every one of you जिसने अपने thought process add करे हैं, every one of you जिसने नहीं भी करे but still अपना time invest करा है, चीजें समझी हैं, कुछ ना कुछ I hope and I believe कि I would be wrapping up the session for today. I would be wrapping up the session for today. एंड ऐसे ही सेशंस हम फ्यूचर में करते रहेंगे, जिससे हम कुछ ना कुछ एक वैल्यू ऐड करते जाएं, कुछ मोटिवेशन सबकी लाइफ में लेकर आते रहें. थैंक यू एवरीवन.